Good morning, students. Welcome to all in New Rajasthan Public School online classes. This is Vikas. I will start class 9 maths. The chapter number 1 is number system. Before starting, I would like to tell आपको जो कॉपी बनानी है वो A4 साइज बनानी है. ध्यान रखना सभी स्टूडेंट्स को जो कॉपी होनी चाहिए वो A4 साइज होनी चाहिए. आप अलग अलग स्टूडेंट्स कई बार छोटी कॉपियां बड़ी कॉपियां बना के लाते हो, ऐसा नहीं है. पहले से ही मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ और कॉपी एटलीस्ट 300 पेजेस की होनी चाहिए, कम से कम 300 पेजेस की होनी चाहिए. ओके स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट. आवर चैप्टर इज chapter number 1, number system, and lecture number is 1. Now come to students, first we talk about the natural numbers. Natural numbers. Okay, if we talk about the natural numbers, what is natural numbers? So we can say the numbers which start with 1, 2, 3, 4, 5 and so on. This is called natural numbers. और we can also say, या हम ये भी कह सकते हैं कि collection of numbers which is 1, 2, 3, 4 and so on. These numbers are called natural numbers. So we can write the collection of numbers start with 1, 2, 3, 4 and so on. These numbers are called natural numbers and it is represented by capital N. Why capital N? Because natural number is initiate with N. That's why we use N. Why this is called natural numbers? Natural numbers means nature. In nature, our surrounding. In our surrounding, आप always क्या देखते हो? कोई भी चीज अगर आप देखते हो तो वो क्या होता है? 1, 2, 3, 4. आप कभी भी देखोगे तो आपको 1%, 2%, 3% दिखेंगे, या कभी भी देखोगे आप तो ट्री पे आपको 1 एप्पल, 2 एप्पल या 3 एप्पल्स दिखेंगे. आपको कभी भी ऐसा नहीं दिखेगा कि 0 एप्पल है, ऐसा कभी नहीं होगा. अगर एप्पल दिखेगा तो एटलीस्ट 1 दिखेगा ही दिखेगा, या तो फिर होगा ही नहीं. इट मीन्स द इन नेचर जो ऑल द थिंग्स स्टार्ट विद 1, 2, 3, 4. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. नाउ व्हाट हैपेंड इफ वी इंक्लूड 0? क्या होगा अगर हम इसके साथ 0 को डाल देते हैं? तो जब हम नेचुरल नंबर्स के साथ 0 को इंक्लूड कर देते हैं, एट दैट टाइम these numbers are called whole numbers. What called? Whole numbers. What is whole numbers? Whole numbers. What is whole numbers? The collection of numbers with 0, 1, 2, 3, 4 and so on. These are called whole numbers. Now it is represented by W. Why W? Initial letter is W. It is represented by capital W. Now, so natural numbers start with 1, 2, 3, 4. Whole numbers start with 0, 1, 2, 3, 4. Now, anybody can ask you, can every whole number be a natural number? वो आपसे पूछ सकता है कि क्या सारे whole numbers हमारे natural number हो सकते हैं क्या? नहीं, because 0 is not a natural number. आपको नेचर में कभी भी 0 चीजें नहीं दिखाई देंगी. बट वो अगर ये कहता है कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? यस, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं. वी कैन राइट दिस all the natural
numbers must be whole number, but it is not necessary that all whole number should be natural number, not necessary, as 0 is a whole number, but it is not a natural number. Now students, what happens if we add positive and negative sign with natural numbers and includes 0? This is called integers. What is integers? Integers. The natural numbers with positive and negative sign including 0 is called integers. So we can write as -1, -2, -3 and 0, 1, 2, 3 and so on. These are called integers and it is represented by z. It is represented by capital Z. Now you can say, sir, why capital Z? भाई नेचुरल नंबर को n से शो किया बिकॉज नेचुरल नंबर, होल नंबर्स को हमने w से शो किया बिकॉज होल नंबर्स इनिशियल विद w, बट इंटीजर इज इनिशियलाइज्ड विद i, ये तो i से शुरू हो रहा है, बट हम इसको किससे शो कर रहे हैं? कैपिटल से. सो इसका रीजन है z is used from word from German language Zehlen, Zehlen, which means to count, or we can say Zehel means number. That's why we use Z for integers. Okay, clear? Natural number is represented by n, whole number is represented by w, and integer is represented by z, because a German language Zehlen means to count or Zehel means numbers. Okay, now pause your screens, note down. Okay students, now we talk about rational numbers. Think about rational numbers. आप पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हो 8th क्लास में. क्या होता है रेशनल नंबर्स? अ नंबर्स which can be written in the form of p by q. A number which can be written in the form of p by q, where p and q are integers and q does not belongs to 0. जहां पे q 0 से बिलोंग नहीं करता है. ऐसा क्यों? सपोज लेट
p equals to 3 and take q equals to 0, means your rational number will be 5 3 by 0, that is your infinite or undefined. That's why q does not equals to 0. Now examples of rational numbers, you can write 1 by 2, 3 by 4, 7, minus 2, minus 3, and so on. Now you can also say, sir, say how 7 is a rational number? 7 rational number क्यों है? Because we can write 7 in the form of 7 by 1. This can be written in the form of 2 by 1. This can be written in the form of 3 by 1. And you can clearly see 7 is also an integer and 1 is also a integer. That's why 1 by 2, 3 by 4, 7, minus 2, minus 3, and so on. All are the rational numbers. Clear? What is rational numbers? The numbers which can be written in the form of p by q. वो नंबर्स जो p by q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो सारे रेशनल नंबर्स होते हैं. कंडीशन क्या है? p और q हमारे क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए. एंड कभी भी q आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. ओके, नाउ it is represented by capital Q. Now you also ask, अब आप पूछ सकते हो सर Q से क्यों? Because Q show quotient. Quotient means division. Clearly you can see 3 is divided by 4, 7 is divided by 1, minus 2 is divided by 1, and 3 is 1. That's why it is represented by Q, because it is the ratio or quotient of two integers. ये दो numbers का क्या होता है? Quotient होता है या division होता है, इसलिए हम इसको Q से show करते हैं. हम इसको रेशनल नंबर क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज कम फ्रॉम रेशियो. यू कैन से रेशियो. आपने 6th क्लास में पढ़ा है, 7th क्लास में पढ़ा है कि हम इससे क्या निकालते हैं? रेशियो. जैसे इट इज आल्सो कॉल्ड 3 by 4 और 3 ratio 4. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इफ वी टॉक अबाउट राइट 1 by 2 equals to 2 by 4 equals to 3 by 6 equals to 10 by 20. What is all these? All these are rational numbers, but this is, there are a unique significance. All these are equal. That's why this is called equivalent rational numbers, or we can say fractions. Okay students, clear? Now pause your screen, note down this. Okay students, now come to the examples. First we conclude what we have learned. हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा natural numbers. What is natural numbers? The numbers which is start with 1, 2, 3, 4 and so on. After that अगर हम इसमें 0 डाल दें, 0 डाले तो ये क्या बन जाएगा? अगर हम 0 डालते हैं तो ये बन जाता है हमारा whole numbers. इसको हम बनाते हैं. Suppose ये हमारा कोई ये बॉक्स है, और वी कैन टेक अ सर्कल. नाउ टेक अ सर्कल. इन दिस सर्कल इफ वी राइट 1, 2, 3, 4 and so on. What is called? This is called natural numbers. Now अगर हम इसमें 0 इंक्लूड कर देते हैं, 0 इंक्लूड करते ही ये क्या हो जाता है? होल नंबर्स. और इसी में अगर हम अपने नेगेटिव साइन के साथ हमारे नेचुरल नंबर्स भी डाल देते हैं तो ये क्या बन जाता है? एंड सो ऑन, इंटीजर्स. और इसी में अगर हम अपने इंटीजर्स का रेशियो
Okay, student. Now, okay, okay, students. Now, if we talk about अगर हम अपने इंटीजर्स का क्या ले लें, रेशियो ले लें. रेशियो मीन्स जैसे हमारे इंटीजर्स क्या है, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4. At that time, what happened? 1 by 2, -2 by 1, 5 by -3. All these are called rational numbers. What is rational numbers? नाउ कुछ स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, एग्जांपल है हमारे, हम उनके क्या करेंगे, ट्रू और फॉल्स चेक करेंगे. जैसे फर्स्ट है आपका, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर. एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर. एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर. नाउ स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि क्या ये ट्रू है और फॉल्स है. चेक करो, ये है मेरा होल नंबर, ये मेरा होल नंबर. क्या इसमें सारे नेचुरल नंबर हैं? बिल्कुल हैं. बट अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं तो क्या मेरे होल नंबर्स में आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं. क्यों? जीरो. जीरो क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है. इट मींस एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर. ये क्या है हमारा? फॉल्स है. नाउ सेकंड स्टेटमेंट है हमारा, सेकंड स्टेटमेंट, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर. एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर. इंटीजर का है जरा देखो, पहले हम इसको लिख लेते हैं. एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर. ओके, चेक करते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है. देखो, क्या पूरा ये इंटीजर रेशनल नंबर के अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा है, पूरे अंदर में आ रहा है. इट मींस ये क्या है हमारा? ट्रू है. ट्रू. थर्ड पे आ जाइए. थर्ड पे अगर हम आते हैं तो थर्ड स्टेटमेंट है हमारा, एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर. क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर के अंदर आ रहे हैं? क्या नहीं, ये सारे क्या हो रहे हैं? बाहर जा रहे हैं. यहां पे हमारा थर्ड स्टेटमेंट है, every rational number is a integer. ये ट्रू है या फॉल्स? क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे रेशनल नंबर में इंटीजर तो है, बट इंटीजर के अंदर रेशनल नंबर्स नहीं है. तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ रेशनल नंबर हैं जो इंटीजर से बाहर जा रहे हैं. इस वजह से ये क्या है हमारा? फॉल्स स्टेटमेंट है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स कम, एक और टॉपिक है हमारा, रेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स. एग्जांपल नंबर 2. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू एग्जांपल नंबर 2. इफ आई से कि आप रेशनल नंबर्स फाइंड करो, किसके बीच? कोई भी दो आपके नंबर्स के बीच फाइंड करने हैं. सपोज करो मैं कहता हूं, फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2. फाइंड द 5 rational numbers between 1 and 2. Now there is two methods. First we talking about mean method. First method is mean method. What happen in mean method? हम सभी जानते हैं मीन क्या होता है, कैसे निकालते हैं. मीन हम निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब हमारे पास यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशन है जरा देखो, केवल 2 ऑब्जर्वेशन है. तो इन्हीं दोनों ऑब्जर्वेशन को हमें क्या करना है? सम करना है, और 2 से क्या करना है? हमें इसको 2 से डिवाइड करना है. ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट नंबर, रेशनल नंबर्स between 1 and 2. How can find first number? 1 plus 2 is 2 divided by 2. Now here it comes 3 by 2. Now we can write, so 1 is less than 3 by 2 is less than 2. Now second number,
आप इनमें से कोई से भी दो नंबर को सेलेक्ट कर सकते हो, या तो ये या तो ये। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं। 1 + 3/2 ये हो गया इनका सम, और ये हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा आपका 2 + 3/2 that is your 5/4. So we can read, so 1 is less than 5/4 is less than 3/2 is less than 2. Now select these two numbers for third. So third number, you can write 3/2 plus 2 and divided by 2. That is your 3 plus 4 upon may 2 upon may 2. That is your 7/4. Now so 1 is less than 5/4 is less than 3/2 is less than 7/4 is less than 2. Now you can select any these two numbers. Now we select for fourth. 1 by 1 plus 5/4 is to divided by 4. That is your 4 plus 5/4 upon 2. That is your 9/8. Now you can write 1 is less than 9/8 is less than 5/4 is less than 3/2 is less than 7/4 is less than 2. Now come to the last number, fifth number. 1 plus 9/8 upon 2. That is your 8 plus 9 divided by 8 upon may 2. That is your 17 upon may 8 upon may 2. That is your 17 upon may 16. So the five rational numbers, so the five rational numbers between 1 and 2 are what? This is your 1 is to less than 17/16 is less than 5/4 is less than 3/2 is less than 7/4 is less than 2. Okay students, now pause your screen, note down this. Okay students, now second method is very easy method. As how many numbers you have to find? 5. Then add one this. How many numbers you have to find? आपको जितने नंबर निकालने हैं उनमें आप एक ऐड करो. हमें कितने चाहिए? 5 चाहिए. तो हम क्या करेंगे? 1 ऐड करेंगे. तो कितना हो जाएगा ये? 6. अब ये हमारा क्या है? 1 and 2. नाउ क्या करेंगे हम? 6 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे. सिमिलरली हेयर 6 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे. व्हाट हैपेंड? दिस विल 6/6 एंड दिस विल 12/6. नाउ इनके बीच में कितने रेशनल नंबर्स आएंगे? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6. ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे. सो द रेशनल नंबर्स between 1 and 2. What happened? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 and 12/6. This is our rational numbers. So in this method what we can see, you can multiply with 7, 8, 9, 10 and infinite so on. So we can say there are large number of rational numbers exist between two numbers. So we can write a remark. What is remark? We can write a remark. There are infinitely
many rational numbers between two rational numbers. अगेन हाउ कैन वी से, हम कैसे ये कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारे रेशनल नंबर होंगे? देखो हमें 5 चाहिए तो हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, ये 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, इनफाइनाइट अनकाउंटेबल हो सकता है। इट मींस दो रेशनल नंबर के बीच बहुत सारे रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल गिव यू एक्सरसाइज एंड यू हैव टू सॉल्व दैट। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर एक्सरसाइज। ये आपकी एक्सरसाइज है, आपको ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। फर्स्ट आपको इसको अपनी रफ कॉपी में करना है, उसके बाद हम सेकेंड लेक्चर में इसके एक्सप्लेन करेंगे, इसको इसका सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट इसको आपको जो मैंने आपको बताया है कि A4 साइज की कॉपी एटलीस्ट 300 पेजेस की होनी चाहिए। उसमें आपको पहले आपको वो सारी डेफिनेशंस नोट डाउन करनी है विद डेट, जो भी डेट आप, ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इसको सॉल्व करना है और आपको अपनी HW में इसको विद डेट करना है और अच्छी हैंडराइटिंग में करना है। ऐसा नहीं है आप इसको खींच के करो और ऐसे ही, आपको ढंग से करना है। ये आपकी कॉपियां चेक की जाएंगी। ओके, हम इसको अपने सेकंड लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, कीप स्टडीइंग।